کیا ہے تو اچھی طرح یاد رکھیے، آسان طریقہ خدا تک پہنچنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے تو اس تصور کے ساتھ گزارے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے میری قوم کے جوانوں، اپنے دل و دماغ میں بسانا۔ ولایت کا طریقہ آسان طریقہ کہ انسان اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس آپ لین دین کرو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ لیٹو بستر پہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ بیوی کے ساتھ زندگی گزارو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ دوستوں کے درمیان بیٹھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ مدرسے جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اسکول یونیورسٹی کالج جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کوئی برتاؤ کرو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی جانور کو بھی آپ نے پالا ہے تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اس تصور کے ساتھ جینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس مضمون کو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ الاحسان تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنی برائیوں کا خاتمہ ہے اس میں۔ ایک تصور کہ خدا وحدہ لا شریک، خدا قادر و قیوم، خدا اللہ اکبر ستار و جبار مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر یہ تصور کر لینا کہ رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر دیکھیے انسان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ کبھی جرائم نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، وہ کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگ نیاز شریف کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ لوگوں کو ہم کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پہ تصور کیا؟ کھانا کھلانا بس اس نیت سے ہوتا ہے کہ اس بھوکے کا دل خوش ہو جائے۔ آخر انسان کو کیوں خوش کر رہا ہے؟ انسان کی خوشی کیوں چاہتا ہے؟ اور کسی بھی نیکی پر وہ ثواب کی بشارت نہیں ہے جتنا انسان کے دل کو خوش کرنے کی بشارت ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سننا، چونکہ غریب نواز کی محفل ہے، سرکار غریب نواز کے وہ واقعات آپ کو یاد ہے، جو یاد ہے اس کو ریپیٹ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے کٹورے کے اندر انا ساگر کو سمیٹ لیا تھا، آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ میں کہوں گا کہ انہوں نے جادو کے پتھر کو انگلی سے روک دیا تھا، آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ میں کہوں گا جے پال جوگی کو انہوں نے قدموں میں گرا دیا تھا، میں آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ تو جو چیز آپ کو پہلے سے پتا ہو، اب میں اسی کو ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا زیادہ فائدہ نہ ہو، لیکن جس طرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، اصل جو ہے ان کی تعلیمات ہے، تھوڑا اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کرنا اور دل کے کانوں سے اس کو سننا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دل خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کسی کا دل خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوشی پہنچا دینا، یہ سب سے عظیم نیکی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک کسی مومن کے دل کو دکھا دینا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ جب کوئی کسی کے دل کو دکھا دے، کوئی کسی کے دل کو دکھا دے تو دل دکھانے والے کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ یہ بات خاص خیال رکھنا، جس کا ہم خیال نہیں کرتے، بیوی کا دل ہم دکھائیں، دھیان سے سننا، بیوی کا دل ہم دکھائیں، اپنے بچوں کا دل، کیونکہ میرے ہی تو بچے ہیں، ان کو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی، ارے بچہ ہے لیکن وہ دل رکھتا ہے، بیوی کو مارا، بیوی
मगर वो दिल रखती है। माँ बाप को सताया, माँ बाप है मगर दिल रखते हैं। और याद रखना, अब मैं उससे बड़ी बात करने जा रहा हूं, अगर तुमने किसी काफिर का भी दिल दुखाया, काफिर की बात कर रहा हूं, माँ बाप बहुत बड़ी चीज, मोमिन बहुत बड़ी चीज, अगर तुमने काफिर का भी दिल दुखाया तो अल्लाह ताला ईमान छीन लेता है बाज मर्तबा, काफिर का दिल दुखाने की वजह से। इसलिए इस जमीन पे जियो तो बहुत एहतियात से जियो। ये एहतियात की जगह है, ये इम्तिहान गाह है, ये आजमाइश गाह है। याद रखिए, अल्लाह वालों का, सूफियों का सबसे बड़ा पैगाम, कभी किसी का दिल मत दुखाना। जिंदगी में बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना मगर दिल किसी का मत दुखाना। आज मेरा जवान अपने माँ बाप का भी दिल दुखा रहा है, अपने बीवी बच्चों का भी दिल दुखा रहा है, अपने पड़ोसियों का भी दिल दुखा रहा है। आगे अगर वक्त में गुंजाइश रही मैं गरीब नवाज के हवाले से और बातें अर्ज करूंगा, लेकिन दिल दुखाने की जो बात आ गई तो उस पर मैं आपको एक बात बताऊं कि दिल दुखाना कितनी बड़ी चीज और उससे नुकसान कितना होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बुजुर्ग का, उनकी जिंदगी का वाकया है। इस वाकये को जिन्होंने रिवायत किया, बयान किया, वो हमारे सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सैयदना इमामुल आशिकीन क़ुदवतुल औलिया सैयदना इमाम अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये वाकया बयान कौन कर रहा है? इमाम अबू बकर शिबली, जो आप शजरे में पढ़ते हैं ना, बैर शिबली, शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। ये पीर और मुर्शिद है, ये सरकार गौसे आजम के पीरों मुर्शिद हैं। अल्लाह अकबर। और ये मुरीद सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी के, वो मुरीद हज़रत सैयदना सिर्र सख्ती के, इसी तरह वो मुरीद हज़रत मारूफ अल करखी के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना इमाम अली रजा के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना इमाम मूसा काजिम के, वो मुरीद हज़रत इमाम जाफर सादिक के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो मुरीद है हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो मुरीद और खलीफा है सैयदना इमाम हुसैन के, वो मुरीद और खलीफा है हज़रत मौलाए कायनात के, और वो मुरीद और खलीफा है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये उनके सिलसिले की निस्बत है। मैं जब उन आकाओं का नाम लेता हूं तो थोड़ा उनकी निस्बत इसलिए पढ़ता हूं कि इस तरह की निस्बत पढ़ने से बलाएं टल जाती है। तो अर्ज ये कर रहा था, किसी का दिल दुखाना आज इसको गुनाह नहीं समझा जाता, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाद सूफियों ने कहा मस्जिदों के माज़अल्लाह कोई तोड़ दे, बहुत बड़ा गुनाह है। मस्जिदों को कोई तोड़े, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह के नजदीक मस्जिदों को तोड़ने से भी ज्यादा अगर कोई बड़ा गुनाह है तो वो किसी मोमिन का दिल तोड़ देना है। सोचिए जरा, जिसका हमें कोई ख्याल नहीं। अल्लाह अकबर। इस्लाम कहता है, हमारा मजहब इस्लाम, कि मस्जिद में कच्ची प्याज खा करके मत जाओ। क्यों मत जाओ? ताकि तुम्हारी बू से, मुंह की बदबू से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जो मजहब मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ पहुंचने को गवारा नहीं करता, वो मजहब तुम्हारी जबान की गालियों से किसी को तकलीफ पहुंचे, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? याद रखिए, हम असल इस्लाम की तालीम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, वरना हमारा मजहब इतना खूबसूरत है। इसकी असल जो तालीम है, जो मुस्तफा जान रहमत लेकर आए थे, अगर हमने उस पर तवज्जो की होती तो पूरी दुनिया दामन इस्लाम में पनाह लेने पर मजबूर हो जाती। इसलिए मेरे भाई, कोई काम करो तो उससे पहले सोचो इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, इसलिए अपने अंदर अखलाक की बुलंदी पैदा करो। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास एक शख्स मुरीद होने के लिए आया, और मुरीद होने के बाद कहा हजरत कोई वजीफा दो। बड़ी माजरत के साथ, हम लोग वजीफे में बहुत तवज्जो करते हैं, लेकिन आपको बताऊं, ये बुजुर्गान चिश्त ये वजीफे पे उतनी तवज्जो नहीं करते, वो किसी और पे तवज्जो करते हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया, मेरे बेटे, कसरत से कुरान की तिलावत करना और कसरत से रोजे नफिल रखना और रात रात भर नफिल नमाजें पढ़ना, ये तो बूढ़ी औरतें भी कर लेती हैं। असल जो मर्दों का काम है कि वो हर एक
سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب تمہاری نیکیاں تولی جائے گی اللہ کے میزان پر، تو سب سے بھاری جو نیکی ہوگی وہ تمہارا حسن اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ ارے خود بھوکے رہو اوروں کو کھلاؤ، خود پیاسے رہو اوروں کو پلاؤ، اپنی جگہ اگر جگہ کم ہے اور کوئی بندہ کھڑا ہے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاؤ، اپنی جگہ کسی کو دے دینے کا انعام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو محفل میں اپنے بھائی کے لیے جگہ کو کشادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ اب اپنے مذہب کی تعلیم سوچو، جو مذہب آگے کسی کے لیے کھسک جانے یا پیچھے ہٹ جانے پر جنت کی بشارت دیتا ہو، ایسا مذہب ہے کوئی دنیا میں کہ صرف آپ کسی کے لیے جگہ چھوڑ دیں تو اللہ آپ کے لیے جنت میں جگہ تیار فرمانا ہے؟ کوئی ایسا مذہب؟ یہ صرف مذہب اسلام ہے، لیکن ہم تو لوگوں کو دیکھ کے اور پیر پھیلا دیتے ہیں تاکہ کوئی میرے بازو میں نہ آ جائے۔ نہیں میرے مسلمان، ہم اصل اسلام کی تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دل دکھانا کسی کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا امام ابو بکر شبلی، اللہ اکبر، سید العاشقین، امام العاشقین، امام الاولیاء، قدوۃ الاولیاء۔ اب ذرا جلدی سننا، اگر آپ ایک ہارنوں پر توجہ اس طرف کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آج آپ کو میری مدد کرنا ہے، لیکن آپ مدد میں تھوڑے سے اگر کچے پڑیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو مجھے جو ہے وہ احساس ہوگا کہ میرا گلا بیمار ہے، لیکن اگر آپ نہیں دیکھیں گے ادھر ادھر تو مجھے لگے گا کہ نہیں میرا گلا آج بیمار نہیں ہے، کیونکہ میری قوم میرے ساتھ ہے۔ امام ابو بکر شبلی بیان کرتے ہیں دل دکھانا کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث تھے بغداد شریف میں۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہو۔ محدث کا مطلب ہزاروں حدیث، اور وہ جو محدث صاحب تھے ان کا نام میرے ذہن میں آتا ہے لیکن میں لوں گا نہیں کیونکہ بات کچھ اور کرنا ہے۔ جب کوئی ایسی بات عبرت کی بیان ہو تو اللہ والوں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو ان کو حدیث صحیح 30,000 حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ ہمیں 3 بھی یاد ہو اچھے سے تو بڑی بات ہے نا، ہمیں تو 3 بھی یاد نہیں ہوتی، صحیح طور پہ ہم نہیں پڑھ سکتے حدیث کو، بلکہ دیکھ کر بھی مشکل ہوتی ہے حدیث پڑھنا۔ ان کو 3,000 حدیثیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ یاد تھی۔ سند کسے کہتے ہیں؟ جو راویوں کے نام آتے ہیں نا، جیسے آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ سے پہلے آپ پڑھتے ہیں نا احمد بن اشکابہ، اس طریقے سے ان عمر بن القعقاع، اس طریقے سے جو آپ راویوں کے نام لیتے ہیں تو یہ راویوں کے نام کو سند حدیث کہتے ہیں۔ اور جب متن حدیث آتی ہے تو متن حدیث کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ حدیث مبارکہ اس طریقے سے یہ ہے یہ متن حدیث، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن حدیث۔ اور وہ جو آپ نے نام پڑھا احمد ابن اشکاف کا، عمارہ ابن قعقاع کا، یہ ہے سند حدیث۔ تو ایسے سند اور متن کے ساتھ اس محدث کو حدیث صحیح، اب حدیث صحیح کا مطلب کیا؟ تھوڑی مشکل نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غلط کے مقابلے میں صحیح نہیں بلکہ اصطلاح حدیث میں جسے حدیث صحیح کہتے ہیں، حدیث کی اعلیٰ قسم کی حدیث، اعلیٰ درجے کی سند جسے حدیث صحیح کہتے ہیں۔ 30,000 حدیثیں یاد تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں قرآن مقدس 7 قرأت کے ساتھ یاد تھا۔ یعنی قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے 7 طریقے ہیں۔ ہم تو امام ابو حفص کے طریقے پر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور طرق ہے جس سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 7 قرأتوں کے ساتھ ان کو قرآن یاد تھا، اتنے بڑے محدث امام۔
के साथ हो गए। हज को जाने के लिए इतने बड़े मुहद्दिस जा रहे, इतने बड़े बुजुर्ग जा रहे, चलो हम भी चलें। इसलिए कि सफर हज में, उम्रा के सफर में या मुकद्दस बारगाह के सफर में अगर उलमा मुहद्दिसीन साथ में हो तो क्या मुश्किल है। कोई भी मसला पेश आएगा तो आवाम पूछ लेगी, लेकिन उसमें आवाम का अमल दखल नहीं था। उसमें तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े औलिया सब सफर हज में साथ में थे। उस मुहद्दिस ने कहा हम मुकम्मल तवक्कुल के साथ हज के लिए जाएंगे और तकवा के सिवा और कोई चीज हमारे साथ नहीं होगी। और वो तकवा को गोया के ज़ादे राह बना करके जब निकले तो वो बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उलमा और शयूख का काफिला था। फरमाते इमाम अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, इसको इमाम इब्नुल जौजी ने भी लिखा है, इसी तरीके से इमाम शुएब ने भी इसको लिखा है जो मैं पेश कर रहा हूँ। और माजी करीब के हमारे बुजुर्ग हुजूर मुफ्ती आजम के खलीफा और कसीर तसानीफ जिसकी मौलाना अल्लामा फैज अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इसको लिखा है। ये मैं तीनों की किताबों का निचोड़ इतने मजमू आपके सामने अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, वो सुन रही है तो वो भी सुने। दिल दुखाने पर ईमान छीना जा सकता है, दिल दुखाने पर ईमान को ज़वाल आ सकता है। ये जो कारोबार ढप पड़ते हैं ना, यकीनन किसी का दिल दुखाया होगा। ये इज्जत जो जिल्लत में बदलती है ना, यकीनन किसी के दिल से खेला होगा। अल्लाह अकबर, ये खुशियां जो गमों में तब्दील हो जाती है ना, यकीनन किसी के दिल को खिलौना बनाया होगा। याद रखना, बड़े से बड़ा नुकसान उठाना लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। और दिल छोटी छोटी चीजों से भी दिल से दुख सकता है। अल्लाह अकबर। और सूफिया इसी का ख्याल करते थे, इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होकर के जाता है। जो लोगों के दिल का ख्याल न करे और वो रात रात भर इबादत करे तो वो कभी अल्लाह का वली बन नहीं सकता। जिसको लोगों के दिलों का ख्याल ना हो वो कभी मकाम विलायत नहीं पा सकता। तो इमाम अबू बकर शिबली फरमाते हैं, हम हज के लिए उस मुहद्दिस साहब के साथ रवाना हुए और जब रवाना हुए तो हमने देखा कि धूप चिलचिलाती हुई थी। बगदाद मोहल्ला के कुछ दूर हम पहुंचे, चिलचिलाती हुई धूप थी। एक मकाम पर पहुंचे तो उस मुहद्दिस ने, जो अमीर काफिला थे, उन्होंने फरमाया कि सब लोग इस गिरजा ईसाइयों की इबादत गाह को कहते हैं, जैसे हमारी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, वैसे ईसाइयों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? गिरजा कहते हैं। गिरजा की दीवार के साए में उस मुहद्दिस ने कहा सब लोग रुक जाओ। सब लोग रुक गए। उसके बाद मुहद्दिस साहब जो है सब लोग लेट गए तो वो चुपके से उठे। बड़े नेक नवियत आदमी थे। उन्होंने सोचा सैकड़ों उलमा मुफ्तियान किराम अहलुल्लाह हैं, इनको पानी की प्यास लगेगी, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, तो वो पानी का इंतजाम करने के लिए इधर उधर निकले और पानी ढूंढने लगे, पानी तलाश करने लगे। जब पानी को ढूंढने निकले तो उन्होंने क्या देखा? एक चश्मा है, एक पानी का चश्मा है। अल्लाह अकबर, गोया के तालाब है। जैसे ही उन्होंने मशकीजा निकाला वो खुश हो गए कि मैं पानी ढूंढने में कामयाब रहा, अब मेरा काफिला प्यासा नहीं रहेगा, मेरे काफिले को प्यास नहीं सताएगी। ऐसे में जैसे वो मशकीजा डुबोना चाहते थे तो उनको पानी के अंदर, अक्स के अंदर एक खूबसूरत चेहरा नजर आया, एक हसीन और जमील चेहरा नजर आया। जैसे उन्होंने पानी के अंदर एक चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, हुस्न क्या था उस लड़की का, जमाल क्या था उस लड़की का। अगर हिंदुस्तानी शोरा के लबो लहजे में उसका हुस्न कोई बयान करेगा तो वो ये कहने की जुर्रत कर सकता है कि उसके चेहरे को मथुरा की सुबह, उसके चेहरे को बनारस की सुबह कहूँ या मथुरा की शाम कहूँ, इतनी खूबसूरत थी वो लड़की। और अगर अल्लामा अरशदुल कादरी याद आ जाए तो फिर ऐसा लगता है उसके हुस्न को कोई बयान करने वाला यूं बयान करे कि उसके रुखसार नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे किसी झील के अंदर अभी किसी लाला ने अपना जो है वो पत्तों के दरमियान से अपने रुख को जो है वो बेनकाब किया हो। उसके होठ नहीं, ऐसा लगता था जैसे लाले यमन हो, उसके दांत नहीं जैसे दुर्रे अदन हो, उसके बाल नहीं जैसे सुंबुल का पौधा हो, उसका चलना नहीं जैसे हरन का चौकड़ी भरना हो। और उसके बागपन को देखकर ऐसा लगता था जैसे लाखों तितलियों का बागपन उसके एक वजूद के अंदर निचोड़ दिया गया हो। ऐसी हसीन, ऐसी जमील, ऐसी खूबसूरत, ऐसी महजबीन, हुस्न की मलका, हुस्न की परी उस लड़की को मुहद्दिस साहब ने देखा। वो मुहद्दिस जिसने कभी औरत नहीं देखी थी, आंखों पे इतना कंट्रोल था कि आंखों से कभी किसी औरत पर नजर नहीं डाली थी। पहली मर्तबा पानी में किसी औरत को देखा, फिर मुड़कर उसका असल चेहरा देखा, इतनी खूबसूरत लगी तो फौरन एक जुमला कहा, ए लड़की, क्या तू मेरे साथ शादी कर सकती है?
اس نے کہا یہ فیصلہ تو میرا باپ کرے گا، میرا بابا کرے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، جب تک اللہ کا کرم ہماری مدد کرتا ہے ہم گناہ نہیں کرتے۔ بات یاد، اگر ہم گناہ سے بچے ہیں تو یہ ہماری دیر ہوشیاری نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جب تک وہ مدد کرتا ہے ہم گناہ سے بچتے ہیں، جب اس کی مدد رک جاتی ہے ہم گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی مدد رک گئی۔ اللہ نے ہمیں اپنے نفس کے حوالے کر دیا، جب تک اس کا کرم سنبھالتے رہتا ہے تب تک ہم گناہوں سے رکتے رہتے ہیں۔ اور اس سے پتا چلا کہ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا کتنا بھیانک ہے، کہ عام آدمی تو عام آدمی، وقت کا محدث بھی ایک لڑکی پر جب پاپ کی نظر ڈالتا ہے تو انجام کیا ہوا؟ جیسے اس لڑکی پہ نظر ڈالی نا، کیا کیا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی، یہ گفتگو کے درمیان وہ پورا قرآن بھول گئے، جتنی حدیثیں یاد تھی وہ ساری حدیثیں بھول گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عورت پر پاپ کی نظر ڈالنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عورتوں کو غلط نظر سے دیکھنا؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میرا یہ تیر کبھی خطا نہیں کرتا۔ میرے بھائی، ایک چھت پہ کھڑی ہوئی خوبصورت لڑکی کو وقت کا اتنا بڑا محدث دیکھ لے تو وہ قرآن بھول جائے، حدیث بھول جائے، اور آگے کا انجام آپ ابھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ راتوں کو جو لوگ عورتوں کو ناچتے دیکھ رہے ہیں، فلموں میں سیریلوں میں دیکھ رہے ہیں، نرم گدوں پر گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی ان کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی؟ یہ بھی بتاؤں، جو ہماری قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے اس میں بھی دخل گناہوں کو ہوتا ہے۔ جو ہماری نگاہوں میں عمر کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمر کے اس حصے میں پہنچنے سے پہلے جو نگاہیں کمزور ہوتی ہے، گناہوں کا اس میں کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے۔ عمر کے حساب سے نظر کم ہونا تو یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن عمر سے پہلے ابھی 35 سال کا کڑیل جوان ہے، ابھی 22 سال کا کڑیل جوان ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، یقیناً کوئی نہ کوئی عمر کے اندر کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہہ دوں، اب کسی چشمے بانے کو دیکھ کر کے معاذ اللہ یہ مت کہنا کہ اس نے کوئی پاپ کیا ہوگا، کسی سے بدگمانی مت کرنا، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اس لڑکی کو کہا اے لڑکی کیا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اس لڑکی نے کہا یہ فیصلہ تو میرا باپ کرے گا۔ اس کے باپ کو جو عیسائیوں کا بڑا رہنما تھا، بڑا قائد تھا، بڑا عالم تھا، اس کے پاس وہ محدث گئے۔ اللہ اللہ، ان کا نام اس عیسائی نے بھی سن رکھا تھا، اس لیے کہ علماء کے نام ان کے علماء کو بھی پتا رہتے تھے۔ اس دور میں بستیاں بہت زیادہ دور دور تو تھی نہیں، یہاں سے نکلے وہاں قیام کیا تھا، کہا میں فلاں محدث ہوں، فلاں اندلوسی محدث ہوں، میں میرا نام یہی، انہوں نے نام بھی بتایا۔ اللہ اکبر، اس نے نام سنا، کہا بات کیا ہے محدث صاحب؟ کہا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ کہا یہ فیصلہ تو میری بیٹی نے کرنا ہے، اکلوتی بیٹی کو میں نے بڑے ناز و نم سے پالا ہے۔ اس کے بعد کہا میری بیٹی سے پوچھ لوں۔ اللہ اکبر، جب بیٹی سے پوچھا وہ محدث کان لگانے لگے کہ آخر بیٹی اور باپ میں بات کیا ہو رہی ہے، سفر حج میں جا رہے ہیں، نکاح کا پیغام عیسائی لڑکی کو دے دیا۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی کہتی ہے چونکہ یہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، مسلمانوں کا عالم ہے، اگر نکاح کر کے بھاگ گیا تو، اور پھر یہ مسلمان اور یہ ہم عیسائی، کیسے نکاح ہوگا؟ اس کو بولو کہ پہلی شرط ہے کہ یہ عیسائی بنے، مسلمان اسلام چھوڑے عیسائی بنے۔ جیسے لڑکی نے کہا اس کو کہا عیسائی بنے، انہوں نے اس کی بات بھی پوری ہونے نہیں دکھا کہ میں نے اسلام معاذ اللہ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں، میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں اس طرح کی بات کروں۔ وہ عیسائی بن گئے، لڑکی نے کہا عیسائی تو بن گئے، شادی کرنے کے لیے عیسائی بنے، اپنی ہوس پوری کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں کیسے اعتبار کروں؟ آپ کو میرے اس گرجا میں جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تب تک رہنا ہے، اور میرا دل مطمئن ہوگا کب کہ میں سور پالنے کی شوقین ہوں، خنزیر پالنا میرا شوق ہے، تو میرے ساتھ میرے کھیت میں تم بھی سور چرانے کے لیے اور پالنے کے لیے چلو، تو تب
मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपने इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उस मुहद्दिस ने कहा मैं इसके लिए भी तैयार हूं। और वो मुबारक असा जिसको टेक लगा के वो जुमा का और ईदैन का खुतबा देते थे मुहद्दिस साहब, उससे वो सूअर चलाने लगे। उधर हंगामा मचा, अमीर काफिला कहाँ गए, अमीर काफिला कहाँ गए, अमीर काफिला कहाँ गए। बहुत ढूंढा इधर उधर, नहीं मिले। इमाम अबू बकर शिबली फरमाते हैं मैं ढूंढते ढूंढते निकला तो देखा कि वो खेत में अपने उसी असा से उस लड़की के साथ जो बड़ी गजब की खूबसूरत थी सूअर चरा रहे हैं। मैं तो रो पड़ा। इमाम अबू बकर शिबली कहते मैं तो रो पड़ा। रोने की बात थी, रोने की बात थी। क्यों? अगर हमारे पास एक नेकी भी ना हो और हम ईमान पे मर जाएं तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। और अगर पहाड़ों जैसी नेकियां हो और ईमान ना हो, जहन्नम ही जहन्नम है, हमेशा के लिए जहन्नम। अल्लाह ने किसी के भी साथ सिवाय चंद नुफूस कुदसिया के ऐलान नहीं किया, वादा नहीं किया कि मैं तेरा ईमान पे खात्मा करूंगा। कोई वली हो जाता है तो भी उसके ईमान को खतरा रहता ही है मरने तक। वली होकर भी उसके ईमान को मरे दम तक खतरा रहता है। अगर मरते वक्त अल्लाह चाहे तो वली कभी ईमान छीन लेता है। आम आवाम क्या है मेरे भाइयों, बहुत कड़ी घाटी से गुजर रहे हैं हम। पुलसराज से गुजरना आसान है, इस दुनिया से ईमान बचा के गुजरना मुश्किल है। इसीलिए गौसो ख्वाजा जैसे लोग जो दुआ करते थे वो ईमान की हिफाजत की दुआ करते। आज तो ईमान की अहमियत ही क्या रह गई, ईमान की अहमियत ही क्या रह गई। अरे नादान है वो लोग जो ये सोच कर बैठे हैं कि मैं तो जन्नत ही में जाऊंगा। अरे नादान, जब नूह अलैहिस्सलाम का इतने बड़े पैगंबर का बेटा काफिर होके मर सकता है तो अपनी औकात क्या है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुनाफिक होके मर सकती है तो अपनी औकात क्या है। इसलिए बहुत मोहतात रहो, आसान नहीं है। हजरत अमीर खुसरो ने कहा था बहुत कठिन है डगरपन घटकी। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह जो तूने मुझे ईमान दिया ये ईमान तू कभी छीनना मत मेरे मौला। जो तूने नेमतें दी ये नेमतें तू कभी मत छीनना। क्यों? जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे लोग ये दुआ करते अल्लाह नेमत मत छीनना। वो बेनियाज है, वो बादशाहों को फकीर करता है, फकीरों को बादशाह करता है, वो मोमिनों को काफिर कर देता है, उसकी खुफिया तदबीर है, काफिरों को ईमान दे देता है। मैं यादिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। वो जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, वो किसी को गुमराह करे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। सोचो तो सही, एक वक्त वो तसव्वुर में लाओ कि मसनदे मुहद्दिस की मसनद पे बैठ के आला आला रसूलुल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाला अल्लाह अकबर जब सूअर चरा रहा होगा जंगल में एक लड़की के साथ, हालात कैसे रहे होंगे, कैफियत क्या रही होगी। इमाम अबू बकर शिबली कहते हैं मैं तो रो पड़ा। मैंने लोगों से कहा लोगों आपका अमीरुल हज मिल गया, हज के काफिले का अमीर मिल गया, लेकिन चलो तो सही देखो क्या हालत में। जब देखा तो सब रो पड़े। अल्लाह अकबर, ये खबर बगदाद किसी ने पहुंचा दी। बगदाद के बादशाह ने कहा आज के बाद सारे मदरसे बंद कर दो, सारी हदीस की दरसगाहें बंद कर दो। जब उलमाए से तो अब कोई हदीस नहीं पढ़ेगा, कोई कुरान पढ़ना पढ़ाना नहीं होगा। ताले लगा दिए गए उधर इधर। ये उनको समझा रहे मुहद्दिस साहब कुछ ख्याल करो, कुछ ख्याल करो, आप सूअर चरा रहे हैं, हमारे मजहब में इसकी कोई गुंजाइश है, एक लड़की के साथ आप घूम रहे हैं, इसकी कोई गुंजाइश है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। तो उस वक्त इमाम अबू बकर शिबली ने बड़ा रोल अदा किया, कहा कुरान का सब भूल गया, सिर्फ 2 आयतें याद रही, कुरान से सिर्फ 2 आयतें याद रही बस। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे। हदीस से 2 हदीसें याद रही, बल्कि एक कि जो अपना दीन बदल दे उसकी सजा कत्ल है। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। हदीस भूल गया, कुरान भूल गया। चलिए हजरत हम हज को जा रहे थे ना, इतने मुबारक सफर में हज का मैं नहीं आता।
اب میں نے نہیں آنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ حج کو گئے، بہت دعائیں کی انہوں نے عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں جا کر سکتے تھے سفر میں۔ صاحب لوگوں کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا، اب کوئی خوش نہیں ہے، سب روتے دھوتے گئے، روتے دھوتے آئے، آنے میں بھی بہت سمجھایا، نہیں مانے۔ پھر وہ لوگ سوچتے تھے کیا منہ لے کر بغداد جائیں گے، کیا منہ لے کر بغداد شریف جائیں گے۔ بالآخر بغداد چند منزل رہ گیا تو ایک آواز آئی، رکو رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ جب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی وہ محدث صاحب تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں پلٹ آیا، حج تو گیا، اب حج تو ہو نہیں سکتا تھا، میں پلٹ آیا، چلو چلتے ہیں۔ توبہ کی سب کے سامنے، لوگوں نے توبہ پہ اعتبار کیا۔ پھر حدیث کی درسگاہیں کھل گئی، مذہبی درسگاہیں سب کھل گئی، سب ہو گیا۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے حضرت آپ اتنے بڑے عالم محدث کافر کیوں ہوئے، عیسائی کیوں ہوئے، کیوں مرتد ہو گئے تھے، کوئی وجہ کسی کو نہیں بتائی، نہیں بتائی۔ ایک دن وہ اپنی حدیث کی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، توجہ کرنا۔ ایک لڑکی برقع پہن کر آئی، اس لڑکی نے پوچھا فلاں محدث صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے، ملنا ہے۔ گئی، حضرت پہچانا؟ نہیں، کون ہو؟ اب کیا بلا آئی؟ کہ کوئی بلا نہیں آئی، وہ جس لڑکی کے لیے آپ عیسائی ہوئے تھے، جس لڑکی کے لیے آپ نے سور چرائے تھے، وہ لڑکی خود مسلمان ہو گئی اور آپ سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا میں کیسے یقین کر لوں اب؟ تو کہا کہ ایک رات میں سو رہی، جب آپ مجھے چھوڑ کے نکل کے آگے تو ایک رات میں سو رہی تھی، میرے خواب میں مولا کائنات تشریف لائے اور مولا علی تشریف لا کر کے انہوں نے فرمایا اے لڑکی بیٹی، مذہب اسلامی سچا ہے، مسلمان ہو جا اور اس محدث سے جا کر اپنا نکاح کر لے، یہ میری طرف سے اس کے لیے حکم ہے۔ نکاح بھی ہو گیا، وہ لڑکی مل گئی۔ اس سے ایک اور بات آگے بڑھنے سے پہلے پتہ چلی، کسی بھی لڑکی سے یا لڑکیاں لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب نہ چھوڑے۔ اگر قسمت میں لکھی ہے تو ایسے آ کر کے ملے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو آپ کتنا بھی کچھ کر لیں نہیں ملے۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ اس لیے یہ جو بھاگنے بھگانے کی شادیاں لڑکیاں لڑکے کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا صبر کرو، وقت آنے دو، ٹائم آنے دو، اللہ تمہیں ملائے گا۔ اللہ کی بڑی شانیں، اس کو ملانے کے انداز آتے ہیں۔ وہ سلیمان اور بلقیس کو ملاتا ہے۔ ذریعہ کون بنا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ، ملانے کا ذریعہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہدہد کہتے ہیں، وہ یوسف اور زلیخا کو ملاتا ہے۔ ذریعہ کون بنا؟ بھائیوں کا کنویں میں ڈال دینا، نہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہوتا، نہ کھوٹے سکوں پہ بیچا ہوتا، اور نہ یوسف مصر پہنچے ہوتے، نہ زلیخا ان کو ملی ہوتی۔ دیکھو ملانے کے انداز۔ کہاں جناب صفیہ، خیبر کے سردار کی بیٹی، اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت مدینہ منورہ میں۔ لیکن اللہ نے فرمایا خیبر جاؤ، اس پہ حملہ کرو، اور حملہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہیں پر حضرت صفیہ کو مصطفیٰ جان رحمت سے ملا دیا جاتا۔ اور یہ حضرت صفیہ امہات المومنین میں ایسا لذیذ کھانا بناتی تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے کھانے سے بہت خوش ہوتے، ان کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا تھا، اور یہ سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی کہ جس دن یہ دلہن بن کے آئی تھی تو زیورات میں لدی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا سیدہ سے فاطمہ اللہ کے رسول نے ایک نکاح اور کیا ہے، تو سیدہ نے کہا چلو اپنی نئی امی سے مل کر آتے ہیں۔ جب گئی تو کسی نے بتایا کہ یہ نبی کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ آئی ہے، تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ میرے آقا آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کو دوں کیا میرے پاس ہے نہیں، البتہ جتنے زیورات پہن کر آئی ہوں میری بیٹی میں سب تمہیں تحفے میں پیش کرتی ہوں۔ ادھر صفیہ نے دیا، ادھر سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ میری امی کی خیر کے لیے میں تیری راہ میں اس کو صدقہ کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ یہ میری امی سلامت رہے۔
अल्लाह को ये मिलाने की शान है, उसको उसके अंदाज आते मिलाने के। लाउबाली मत बनो, इंटरनेट पर बैठकर लड़कियों के साथ जो गंदगी कर रहे हो या लड़कियां लड़कों के साथ गंदगी कर रही, खुदारा कंट्रोल में रहो, अल्लाह पर यकीन रखो। मेरा अल्लाह जो हमारी तकदीर लिख चुका है वो तकदीर पूरी होकर के रहेगी। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इस पर तफसीरा करता कि खुदा ने कहा किसको मिलाया और उसको मिलाने की कैसी शानें आती हैं। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि उस मुहद्दिस के पास वो लड़की आई, निकाह हो गया। अब सारे शागिर्द कहते हैं हजरत एक बार तो बताओ ना, क्यों आप ईसाई हुए, आप मुर्तद क्यों हो गए थे, क्यों काफिर हो गए थे? किसी को नहीं बताया। एक शागिर्द ने कहा, वो इतना लंबा वाकया मैंने पढ़ा सिर्फ इस एक जुमले को पेश करने, कोई और बात नहीं करना था, बस ये एक जुमला आपको बताना था बस, इसलिए पूरा वाकया मुझे पढ़ना पड़ा ताकि बात समझ में आए। एक शागिर्द ने कहा हजरत आप किसी को बताते नहीं कि आप ईसाई क्यों हो गए थे, काफिर क्यों हो गए थे, मुर्तद क्यों हो गए थे, बड़े नेक है, ताज्जुद गुजार है, परहेजगार है, क़िराते सबा के आप हाफिज कुरान है, 30,000 सही हदीसें आपको याद है, आपको सब कुछ बाद में मिला, लेकिन आप हुए काफिर क्यों थे? आप किसी को नहीं बताते हजरत, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मुझे बताएं, मैं इबरत हासिल करूंगा इससे कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो काम आपने किया तो काफिर हो गए। क्यों काफिर हुए अब सुनो। वो कहते हैं मेरे बेटे जब हम उस गांव में पहुंचे, कौन से गांव में, हज करने के लिए जब निकले काबतुल्लाह का, तो हमने पड़ाव कहाँ डाला, वो गिरजा वाले गांव में। उस गिरजा में पहुंचे तो मैंने लोगों को बुतों की इबादत करते थे, लोगों को खिंजीर के साथ चलते फिरते देखा, मोहब्बत करते देखा। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे ये करना चाहिए था कि वो ये गलतियां कर रहे थे तो उनको समझाना चाहिए था, है ना, कि भाई ये मत करो, ऐसा मत करो। उल्टा उनके ये जराइम को देखकर मैंने कहा वाह ये तो सब हकीर जलील लोग हैं, मैं कितना बड़ा, मैं कितना बड़ा कि मैं मुहद्दिस, मैं हाफिज कुरान, मैं ये मैं वो। और उनमें से एक ईसाई मेरे पास आया, कहा आप मुसलमानों के आलिम है, मुझे मुसलमान होना है। तो मैंने उसको गुरूर और घमंड में कहा ओ चल काफिर के बच्चे निकल यहाँ से। उसको झिड़का, उसका दिल दुखाया, उसको झिड़का, उसका दिल दुखाया। उस मुसलमान होने वाले ईसाई बंदे को मैंने झिड़क कर कहा ओ काफिर के बच्चे निकल यहाँ से, उसका दिल दुखाया। वही दिल दुखाना था कि वो ईसाई तो बाद में मुसलमान होकर वली हो गया और इसका ईमान छीन गया। आप क्या समझ रहे हैं दिल दुखाने को? अब आपसे पूछता हूं, एक मुसलमान होने के लिए ईसाई आया और उसको कहा ओ चल काफिर के बच्चे हट, उसको धक्का दिया, ये अंजाम हुआ। जो अपनी बीवी पे जुल्म करता हो, उसको घर की कनीज समझता हो, एक ईसाई जो मुसलमान होने और उसका दिल दुखाया, चल काफिर के बच्चे। जो अपने बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाता हो, माँ बाप दवाई को पैसा मांगे न दे, माँ बाप कहीं सफर पे जाने के लिए पैसे मांगे न दे, ईद के कपड़े खरीदने के लिए जाए तो अपने और अपने बच्चों के लिए शोरूम से कपड़े खरीद करके लाए और अपने माँ बाप के लिए ऐसे अहरे गहरे नट्टू खरे कपड़े खरीद ले। अरे जब अपने माँ बाप हमारे लिए ईद के कपड़े खरीदने जाते थे तो अपने लिए हल्के खरीदते थे और हमारे लिए भारी खरीदते थे। पहले हमारे लिए जूते और चप्पल खरीदते थे, पहले हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करते थे। लेकिन क्या दिन आया जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो तुमने ये दिल दिखाया। अल्लाह अकबर, जो पड़ोसियों का दिल दुखाए। इसलिए मुसलमानों याद रखो, सबसे बड़ी नेकी ईमान के बाद ये है कि तुम किसी का दिल खुश करो। और खाना खिलाना उसी की जैबो उसी तुर्क से है, उसी की एक शक्ल है कि गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों की पहचान ये है, अल्लाह के मकबूल बंदों की पहचान ये है कि वो भूखों को खाना खिलाते हैं। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा किसी भूखे को एक लुकमा खिला दे, सिर्फ एक लुकमा खिला दे, तो उस बंदे के और जहन्नम के दरमियान 70 पर्दे गिरा दिए जाते हैं। अल्लाह
अल्लाह अकबर, ये हाल और एक हदीस में आया है कि 7 पर्दे गिरा दिए जाते हैं और एक पर्दे से दूसरे पर्दे के दरमियान 500 साल का फासला होता है। यानी अगर किसी ने किसी भूखे को सिर्फ एक लुकमा खिलाया तो क्या हो जाता है, उसके और जहन्नम के दरमियान 3500 साल का फासला पैदा कर दिया जाता है। जब एक लुकमा खिलाने पर ये अजर है तो पेट भर खाना खिलाने पर क्या सवाब होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, नफरतों का माहौल है, नफरतें ही नफरतें हैं, मुंह खोलते हैं तो नफरतें बकते हैं, जिल्लतों का माहौल है, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे पड़ोसी की इज्जत पे हमला करते हैं, किसी की गीबत हो रही है, किसी की आबरू पे हमला हो रहा है, किसी की बेटी को अच्छा रिश्ता आ रहा है तो उसको जा करके बहका रहे हैं। उनके यहाँ क्या रिश्ता करते हो? अगर किसी की अच्छी रोजी चल रही है तो उस पर जादू करके उसके रोजी पे वार करने की कोशिश करते हो। मगर याद रखो, तुम जादू करके अल्लाह की दी हुई नेमत को नहीं छीन सकते। शैतान हलाकान कर सकता है, किसी को जान से नहीं मार सकता, मगर याद रखना, किसी की खुशियां छीनने वाले अल्लाह तुझसे ऐसी खुशियां छीनेगा कि कभी तुझे खुशी मैसर भी नहीं आएगी। और दूसरों को खुशियां देने वाले अल्लाह तुझे जमीन के ऊपर भी खुशियां देगा, तुझे जमीन के अंदर भी खुशियां देगा। आजकल लोग जादू में बड़े माहिर हो गए हैं। किसी का कारोबार अच्छा चलते देखा, उस पर जादू किया, किसी को सेहतमंद तंदुरुस्त देखा, उस पर जादू किया। ये सारे काम लोग करते हैं, मगर याद रखो, अगर किसी पर जादू कराने के लिए तुम जादूगर के पास चलकर जाते हो, मेरे आका फरमाते ये कुफ्र है, कुफ्र। जादूगरों के पास जादू कराने के लिए जाना कुफ्र है। और जो किसी पे जादू करे या करवाए, खुद करे या करवाए, शबे बरात में अल्लाह सबको माफ कर देता है, लेकिन जादू करने कराने वालों को माफ नहीं करता। और अगर आप सोचते हैं किसी की खुशी आपको तकलीफ पहुंचाती है, तो ये खुशी का तकलीफ पहुंचाना कहीं ना कहीं ईमान का तोता तो नहीं उड़ गया। इसलिए कि मोमिन वो होता है जो औरों की खुशियों को देखकर खुश होता है, औरों की खुशियों पे वो जला नहीं करता। तो ये सरकार गरीब नवाज जो हिंदुस्तान आए, एक बड़ा पैगाम था, दिल न तोड़ो, दिल न तोड़ो, दिल न दुखाओ, दिल का ख्याल रखो। और गरीब नवाज ने कैसे दिलों का ख्याल रखा, अल्लाह अकबर। गरीब आया दिल का ख्याल रखा, अमीर आया दिल का ख्याल रखा, छोटा आया दिल का ख्याल रखा, बड़ा आया दिल का ख्याल रखा, हत्ता के जान का दुश्मन आया उसके भी दिल का ख्याल रखा। आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज के पास लोग आते थे और आकर कहते थे, उनको हलवा समझते थे लोग गरीब नवाज को। एक फकीर है, अन्ना सागर के किनारे दरख्त के नीचे आंख बंद करके सर झुका के बैठा रहता है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हुकूमत हमारी, सल्तनत हमारी, बादशाह हमारे, इल्म हमारे पास, हवाओं में उड़ने का हुनर हमारे पास, ये हमारे पास, वो हमारे पास। गरीब नवाज के पास आके कहता था, ओ मोइनुद्दीन, मैं आपसे मुनाजरा करूंगा। गरीब नवाज कहते थे, बहुत दूर से चलकर आए हो, थके हुए हो, जाओ पहले खाना खाओ, आराम करो, फिर जब थकन तुम्हारी खत्म होगी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। गरीब नवाज के इन अखलाक को देखकर मुनाजरा करने से पहले वो मुसलमान हो जाया करते। गरीब नवाज का अंदाज ये था, उनके अखलाक क्या बयान करूं। आइए एक वाकया याद आता है, आजकल अगर कोई अपनी नकल उतार दे, कोई अपनी नकल उतारना समझते हैं ना, हम जैसे कर रहे, कोई मजाक में वैसा करे, कितनी चिढ़ लगती है हमें, है ना, चिढ़ लगती है ना नकल उतारने पे। मेरे ख्वाजा एक बस्ती में उतरे, वहां कुछ बच्चे थे, गैर मुस्लिमों के बच्चे, तो गरीब नवाज अजान पढ़ने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का नगमा गुनगुनाने लगे। काफिरों के बच्चे, गैर मुस्लिमों के बच्चे जैसे जैसे गरीब नवाज कह रहे थे, गरीब नवाज के बाद वो मजाक उड़ाने के लिए नकल उतारने लगे। गरीब नवाज को गुस्सा नहीं आया। जब अजान मुकम्मल की तो आसमान की तरफ देख के कहा, मौला जबान से इतने बड़े कलमे निकल गए, दिल अभी तक गंदा है। बस यही कहना था, वो सारे बच्चे कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसके लिए ज़र्फ बड़ा चाहिए, दिल बड़ा। कोई अपनी नकल अपने सामने उतारे, कोई हमारी हिच करे, कोई हमारा तमस्कुर उड़ाए, और फिर इंसान उससे प्यार करे, उसके ईमान के लिए दुआ करे, ये ज़र्फ है सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो जयपाल जोगी जो लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, आखिरी वक्त तक लड़ता रहा, और उसने जो कुछ करना था सब किया। क्या कमी की?
सांप फेंके गरीब नवाज पर, उनके साथियों पे। गरीब नवाज ने क्या किया? आयतल कुर्सी पढ़ के दायरा खींचा। अब ये सिर्फ वाकया रह गया, आयतल कुर्सी पढ़ के दायरा खींचा। क्यों? हम तो 50 बार आयतल कुर्सी पढ़ने, होना कुछ नहीं है ना। वजह, खास बात याद रखना, आयतल कुर्सी वही है, आयतल कुर्सी वही है जो गरीब नवाज ने पढ़ी, वही है जो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, वही है जो मौला अली ने पढ़ी, वही है फारूक आजम ने पढ़ी, वही है रसूलुल्लाह ने पढ़ी। है कोई उसमें कोई कमी बेशी है? कुछ भी नहीं। बदला क्या? क्या बदला? एक आयतल कुर्सी से जादू खत्म, एक सूरह फलक और सूरह नास से जादू खत्म। लोग जादू से इतने डरे सहमे हैं, मैं मजहबी तबके को भी देख रहा हूं, लोग डरे सहमे। अरे तेरे पास हथियार कितना बड़ा है, सामने वाले के पास लकड़ी है, तेरे पास अल्लाह ने कितना बड़ा कुरान का हथियार दिया। जादू की औकात क्या है कुरान मुकद्दस के सामने, लेकिन काम नहीं आ रहा है उसका पढ़ना उसको। वजह ये है, हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने कहा कि लज्जत खाने में होती है कि जबान में होती है, ये एक मसला है। और आसान करो इसको, लज्जत चाय में होती है कि जबान में होती है? किस में होती है? साइंस आज तक फैसला नहीं कर पाई। अगर चाय में लज्जत होती है तो उंगली डुबाए तो उंगली को भी लज्जत मिलनी चाहिए। बात बहुत गहरी कर रहा हूँ सूफिया की, क्योंकि आपने गरीब नवाज उन्वान दिया है। ये खानकाहों की बात ऐसे जलसों में लाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी जुर्रत करता हूँ, लोग नाराज होते हैं। मैं आप अगर समझ रहे हैं तो, अगर लज्जत सिर्फ चाय में है, अगर चाय लजीज है तो उंगली डुबाने से उंगली को भी लज्जत मिलनी चाहिए, हाथ डुबाने से हाथ को भी लज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन चाय की लज्जत सिर्फ जबान को मिलती है, दांत को तक नहीं मिलती। और अगर लज्जत जबान में है तो बगैर चाय की भी लज्जत आनी चाहिए जबान को। तो लज्जत चाय में कि जबान में? आप कहेंगे ना इसमें है, ना इसमें है। फिर किस में है? फिर किस में है? तो ये महसूस करने वालों के पास है लज्जत। अगर आप कहेंगे चाय में है, जबान में नहीं, जबान में चाय में नहीं, तो चाय में तो उंगली डुबाने पे लज्जत नहीं मिलती। और अगर जबान में है तो टाइफाइड वाले को चाय बुरी क्यों लग रही है? बुखार वाले को शक्कर की चाय कड़वी क्यों लग रही है? तो लजीज किसको लग रही है? जिसको सेहत खुदा ने दी। अच्छा, पागल को चाय पिला के पूछो कैसी लगी, ये हाल, उसको अकल ही नहीं है। तो कुरान है, कुरान में इतना पावर है, आयतल कुर्सी पढ़ दो तो सारा जादू दूर के दूर रह जाए। आयतल कुर्सी पढ़ दो तो चोरी ना हो, आयतल कुर्सी पढ़ दो तो जादू कट जाए, आयतल कुर्सी पढ़ दो जहां तक आवाज आए वो सब जिन्नात, शरीर जिन्नातों से महफूज हो जाए। बड़ी फजीलत है आयतल कुर्सी की। अगर इजाजत दे तो अर्ज कर दूं क्या फजीलत। बहुत प्यारी रिवायत बुखारी शरीफ की याद आई जिसका मफहूम पेश कर। एक मर्तबा माले गनीमत में कुछ अनाज आया है, तो मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा वो तुमको ड्यूटी देना है, रात को पहरा तुमको देना है। तो देखा कि एक चोर वो गल्ला और अनाज चोरी करने लगा। वो चोर क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। अबू हुरैरा ने रज़ी अल्लाह ताला उसको पकड़ा, कहो चोर के बच्चे, अब मैं तुझे बांध दूंगा और रसूलुल्लाह के पास तुझे पकड़ के ले जाऊंगा, तुझे सजा मिलेगी। क्योंकि चोर की सजा क्या है? हाथ काट देना इस्लामी हुकूमत में। उसने बहुत मिन्नत समाजत की, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ, मैं अब कल नहीं आऊंगा, वादा करता हूँ, तो आप मुझे छोड़ दें। हज़रत अबू हुरैरा को तरस आया, छोड़ दिया। अब ये कामों में भूल गए, हुजूर से मिले भूल गए। सरकार ने खुद कहा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ओ अबू हुरैरा रात वाले तेरे चोर का क्या हाल है? लोग बुखारी में ये पढ़ के भी अब भी लोग मुनाजरे की बात करते कि इल्मे गैब पे चलो मुनाजरा कर लो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अगर ये इल्मे गैब नहीं तो फिर इल्मे गैब किस चीज का नाम है? बुखारी में अबू हुरैरा भूल गए और आका फरमा रहे तेरे रात वाले चोर का क्या हाल है। चलो इतनी बात तो हो गई है ना। अबू हुरैरा ने कहा हुजूर बहुत मिन्नत समाजत कर रहा था, बोला अब नहीं आऊंगा। आका ने बोला वो फिर आएगा, वो आज फिर आएगा। आका बता रहे कि कल क्या होने वाला है।
अब ये इल्म गैब नहीं तो और क्या। अच्छा, अबू हुरैरा नहीं कहते या रसूलल्लाह आप तो हमारे तरह बशर है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो फिर आएगा? क्योंकि वो अबू हुरैरा सहाबी थे। सहाबी का ऐसा गंदा अकीदा नहीं होता, सहाबी का अकीदा तो कुरानी अकीदा होता है। उन्होंने ये तहैया कर लिया कि वो आएगा तो आज उसको पकड़ूंगा, और रात हुई फिर वो आया, फिर गल्ला चोरी करने लगा, अल मुख्तसर ये, फिर पकड़ा, आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे हुजूर के पास तुझे ले जाऊंगा। उसने फिर बहुत अब ज्यादा गिड़गिड़ाया। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा चलो जाओ, छोड़ दिया। फिर किसी काम में मसरूफी हुजूर से मिले तो कहा कि वो तेरे रात वाले चोर का क्या हाल था अबू हुरैरा, क्या हाल था तेरे रात वाले? हाँ यार रसूल आज फिर आया, तो मैंने तो कहा था आएगा। हुजूर बहुत मिन्नत कर रहा था कि आपने कहा आज फिर आएगा, और वो फिर आया। अबू हुरैरा ने कहा अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा कमबख्त, तू झूठा वादा करता है, अब नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा छोड़, एक बात बताऊंगा तुझे काम की। कहा क्या? कहा अगर कोई रात को आयतल कुर्सी पढ़ लेना तो उसके यहाँ चोरी नहीं होती। चोर बता रहा है, चोर बता रहे चोरी क्यों नहीं होती, वो महफूज रहते हैं बलाओं से और भी चीजें। अब का इतनी बड़ी बात बताई तो छोड़ दिया। सुबह हुई तो सरकार ने कहा क्या हाल है तुम्हारे रात के चोर? कहा हुजूर छोड़ तो दिया, लेकिन उसने कहा झूठा था लेकिन सच बोल गया। झूठा? अबू हुरैरा मालूम है वो कौन था? अरे जिसने देखा वो ना पहचान सका। ये मेरे नबी की आंखें हैं, ये हुजूर की आंखें हैं, और है बुखारी शरीफ की रिवायत। सरकार ने कहा अबू हुरैरा वो कौन था? अबू हुरैरा ने क्या कहा? अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। मोमिन की बोली क्या है? अल्लाह जाने। मुनाफिक की बोली है अल्लाह ही जाने, नबी क्या जाने। और मोमिन की बोली है अल्लाह जाने और अल्लाह के बताए से अल्लाह का रसूल जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कि और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी कह रहे अल्लाह जाने और अल्लाह का अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जानता है, अल्लाह के बताने से अल्लाह का रसूल। तो ये है आयतल कुर्सी की बरकत कि आयतल कुर्सी पढ़ लो तो रात भर महफूज। और हदीस पाक में ये भी आया कि अल्लाह दो फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो रात भर हिफाजत करते हैं। जो सुबह पढ़े तो दो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, वो दिन भर हिफाजत करते हैं। लोग बॉडी गार्ड रखते हैं, वो बॉडी गार्ड धोखा दे देते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ो तो ये अल्लाह फरिश्ते हिफाजत के तौर पर मुकर्रर करता है। साथ में ले जाएंगे, हमारी डिग्रियां यहीं पड़ी होगी, हमारा माल यहीं पड़ा होगा, औलाद सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। हमारे माल पे सब लोग हौज मौज करेंगे, हिसाब हमने देना है। हमने बहुत कुछ कमाया लेकिन कमाना चाहिए भी और जमाना चाहिए भी। कमाओ भी जमाओ भी, मगर एक चीज़ आपसे कहता हूँ, जो कमाया वो भी अपना नहीं, जो जमाया वो भी अपना नहीं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तेरा दुनिया में क्या है? नंबर एक, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, या फिर जो तू आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। इसलिए जो हमने यहाँ कमा के आखिरत के लिए भेजा इंशाअल्लाह वो हमें मिलेगा। और कैसे की शान से मिलेगा? हदीस पाक में आता है जो अल्लाह की राह में दे, गोया वो अल्लाह को कर्ज़े हसना देता है। और कर्ज़े हसना का मतलब ये है लेन देन के वक्त तो कुछ तय नहीं होता, मगर लेने वाला जब देता है वापस देता है तो फिर अपनी मर्जी से उसमें कुछ बढ़ा करके दे सकता है, उसके लिए इजाजत होती है। लेते देते वक्त ये कोई मामला नहीं होता। तो ये अल्लाह इसको कर्ज़े हसना कह रहा है जो हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं। तो गोया कि आज हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे, कल अल्लाह जब लौटाएगा तो अपनी शान के मुताबिक। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़ियात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।